Hello everyone, welcome to Ekamais Academy. So here in this particular video we are going to discuss about one important article which appeared in Down to Earth magazine in the second part of the February in the article called as Slumming It. So we have one article related with Ramsar Convention and addition of Ramsar sites. That is what we are going to discuss in this particular video. So please try to like this video, share this video as much as you can so that we would be coming out better and better for you, and all the valuable feedbacks are invited effectively. And if you have any concern regarding with the videos, you can drop it in the comment section. If you want us to make any particular topic as a video, please do make sure that we would be helping you in that regard once you drop that particular content in the comment section. So we would be moving as such like wetland conservation, which is also called as Ramsar Convention. Why it is called as Ramsar Convention? Generally, these particular wetlands which have international importance, they have gained its prominence, and for the protection of its wetland in and around Iran, in the city of Ramsar, we had one particular intergovernmental treaty which has happened. So as it has took place in Ramsar, it is called as Ramsar Convention. So why it was in news? What actually is a wetland? Wetland, if you see, generally it is a transitional zone. For example, if this is a water body and if this is a terrestrial body, this is a terrestrial ecosystem, this is an aquatic ecosystem. So between these particular two ecosystems, there is a transitional zone, the marshy land or low water level land which does not exceed 5 meters beyond. So these kind of lands, they are considered as wetlands. Generally, we can find wetlands along the banks of the rivers or in and around the lakes, ponds which we have, or in and around the coastal regions along the deltas, estuaries. So wetlands, they have huge amount of significance. Clear? The biodiversity in and around wetland is very high. If you could see in the terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem, more than these particular two, wetlands would be having excess amount of biodiversity in consideration of flora and fauna, and their contribution for the human existence of life is very, very crucial. That's why protection of this particular wetland was a course of concern. So in and around 1971, this particular wetland conservation came across the world, and since then every country which was part of this particular Ramsar Convention started declaring certain wetlands of their particular country as internationally important. Under Ramsar Convention, they started declaring it as Ramsar sites. So in this last, India somewhere around it has accepted this Ramsar Convention in 1982. So since the last 40 years, if you have seen, clear. So India has approximately given 80 Ramsar sites. So recently 5 Ramsar sites were added. On January 31st, our Minister of Environment, Forestry and Climate Change, he has declared 5 more sites under this particular Ramsar Convention. So earlier we had 75, until 2022 75 थे. तो to celebrate India का 75 year of independence, आज़ाद का अमृत महोत्सव, तो उस particular Ramsar sites को 75 नंबर पे बढ़ा दिया गया था. So since then we did not had any addition of wetland, but again अभी इस 2024 में 5 और रामसार साइट्स को जोड़ दिया गया था, है ना. तो इसमें जो लेटेस्ट ऐड हुए हैं, इसके ऊपर यू हैव टू हैव ए ग्रेटर ग्रिप अपॉन विथ. तो एक है मगादी केरा कंजर्वेशन रिजर्व, सो विच इज इन कर्नाटका. दिस इज द फर्स्ट वन विच हैज बीन एडेड टू द 80 लिस्ट. एंड अनका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कर्नाटका में है. एंड अंगनाशिनी एस्चुरी, ये भी कर्नाटका में है. सो दिस फर्स्ट थ्री आर इन कर्नाटका. एंड कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी विच इज देयर, दिस इज लोकेटेड इन तमिलनाडु. थोड़ा नाम उधर इधर हो सकता है, आपका दिमाग में ना बैठे, बट रिपीटेड रिवीजन जो भी है, उस पर्टिकुलर रिपीटेड रिवीजन से आपका ये दिमाग में बैठ जाएगा. सो लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट्री, ये भी तमिलनाडु में. तो 3 कर्नाटका से, 2 तमिलनाडु से have been added to the entire Ramsar sites list. टोटल अभी 80 बन गए. तो इंडिया में अगर गिन चुन के अगर आप देखें, तमिलनाडु हैव मैक्सिमम साइट्स
ये दोनों ऐड करने के बाद इट हैज बिकम 16। उसके बाद में यूपी हैज 10 रामसर साइट्स एज सच, वेयर लास्ट टाइम वो 75 जब इंक्रीज किए थे नंबर 75 को, सो उस पर्टिकुलर 75 में यूपी में बहुत सारे ऐसे रामसर साइट्स ऐड हुए थे। सो तमिलनाडु हैज द मैक्सिमम रामसर साइट्स एज सच। सो व्हाट इंडिया इज, by declaring Ramsar sites, what India want the world to know, that India is concentrating on its environmental perspective in variant areas. So making the legislations, national frameworks on one side, declaring national parks and wildlife sanctuaries on one side, preparing stringent laws for the violation of such particular wildlife for hunting and poachers, and also concentrating on these particular aquatic and semi-aquatic bodies like wetlands. So India is showing its diverse commitments towards reducing the carbon neutrality, है ना, जो नरेंद्र मोदी ने प्रॉमिस किया था। सो कार्बन न्यूट्रलिटी बन जाएंगे, तो वो कार्बन न्यूट्रलिटी कैसे बनेगा? सो दैट वुड हैपन व्हेन वी कंजर्व दिस काइंड ऑफ इकोसिस्टम्स व्हिच हैव द एबिलिटी टू ट्रैप कार्बन, यस और नो? सो यहां पे मैप है, क्लियर? सो ये हम इंटरनेट से लिए हुए मैप है। सो डायरेक्टली PMF IAS की किताब में द क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल दिस गोज टू PMF IAS। सो ये जो मैप है इसमें सारे के सारे रामसर साइट्स एडिशन है। सो इसमें अगर आप देखेंगे 5 जो साइट्स थे जो रिसेंटली ऐड हुए, द लॉन्गवुड शोला RF, अगन सीना एस्चुरी, मगधी खेरा रिजर्व, तो ये भी इसमें ऐड किए हैं। कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी, है ना? सो यू कैन गेट दिस इमेज डायरेक्टली फ्रॉम द गूगल, और आपका जो PMF IAS की किताब है उसमें मिल जाएगा आपको। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, एंड ऐसा नहीं कि पूरा 80 का 80 याद रखें। दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन, रिसेंटली इन February 2024 certain Ramsar sites were added to the entire list making it 80. Which of the following Ramsar sites were added in 2024? ऐसा ये 5 के बारे में पूछने का चांसेस है। ये तो बेस लेवल क्वेश्चन बन गया। करंट अफेयर अगर आप पढ़ लिए तो करंट अफेयर से आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, और एक बेस तरीके का क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विद द रामसर साइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रामसर साइट्स। तो आपको क्या करते हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए रामसर साइट्स को, नेशनल पार्क्स को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलजुल के दे विल गिव द लिस्ट, दे विल आस्क यू टू अरेंज देम, है ना? सो अरेंज करना या रिकॉग्निशन करना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रामसर साइट्स, ये भी ठीक है। अगर थोड़ा बहुत आप याद रखें, थोड़ा एलिमिनेट विलिमिनेट कर करके यू कैन डू इट। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज लाइक थर्ड वन, थोड़े रामसर साइट दे देंगे एंड दे विल आस्क यू टू अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। तो फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर द रामसर साइट्स अकॉर्डिंगली विद द स्टेट लिस्ट। सो अगर स्टेट लिस्ट याद नहीं रहेगा तो यू कांट अरेंज देम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। तो रीजनल नेम के हिसाब से थोड़ा बहुत याद रख लो। अगर दिक्कत आता है, यू विल फाइंड डिफिकल्टी व्हेन दे आस्क इट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। ये बहुत दिमाग खराब करने वाली चीज है। सो उसमें थोड़ा मिलजुल के कोशिश करके यू कैन डू। समटाइम्स अगर कोई रामसर साइट ऑन एंड ऑफ एन न्यूज में होगा, इफ देयर इज एनी रामसर साइट कंटिन्यूअसली इन न्यूज, लाइक मान लेते कि लाइक लोकतक लेक एज अ रामसर साइट और चिल्का लेक एज अ रामसर साइट कंटिन्यूअसली न्यूज में होगा, तो इसमें दे विल आस्क ए क्वेश्चन लाइक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विद द लोकतक लेक। Loktak Lake is the first Ramsar site declared in the northeastern region. Loktak Lake has Kibul Lemjao National Park built in it, and the dancing deer, clear, called as Sangai, is present in this particular Loktak Lake. To protect it, that region has been declared as national park. 1 2 correct, 1 and 3 correct, 2 and 3 correct, none of the above correct. मतलब ऐसा कुछ कोडिंग देके पूछने का चांसेस है एक एक रामसर साइट के हिसाब से। एंड देर इज नो नेसेसिटी हर एक रामसर साइट आप पढ़े, अगर वो न्यूज में है देन यू गो एंड रीड इट अप, अदरवाइज नो नीड टू रीड एवरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी रामसर साइट, है ना। सो समटाइम्स दे वुड बी आस्किंग रिलेटेड विद रामसर साइट्स एंड स्टेट्स, दे विल गिव रामसर साइट्स ऑन वन साइड, स्टेट्स ऑन अनदर साइड, मैच द फॉलोइंग। तो आजकल तो यूपीएससी मैच द फॉलोइंग भूल गया, पेयरिंग दे रहा है एंड दे आर आस्किंग यू हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्ट। यूपीएससी में 2022 में यही क्वेश्चन पूछा था,
पेयरिंग के हिसाब से। तो टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पेयरिंग यू हैव टू रिकॉग्नाइज ऑल द रामसर साइट्स अलोंग विद द स्टेट्स। दैट्स व्हाई स्टेट्स रिकॉग्नाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड समटाइम्स चांसेस वुड बी देयर, फॉर एग्जांपल कीबुल लैमजो नेशनल पार्क है, सुंदरबन रामसर साइट है, और भितरकनिका रीजन है विच इज ऑल्सो a Ramsar site. These might also be protected areas like national parks, wildlife sanctuaries और biosphere reserve. तो उसका लिंकिंग में कुछ क्वेश्चन आने का चांसेस मिलते हैं। और else certain Ramsar sites would be driven by the river waters. Certain Ramsar sites might be having connection with the river basins. तो river basins का पेयरिंग पूछ जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे ये हमें गेस नहीं कर सकते, टॉपिक क्या है वो गेस कर सकते हैं यूपीएससी में। तो आप शांत दिमाग से मेक श्योर दैट यू रिमेंबर एज मच एज रामसर साइट्स। हो सकता है इस बार एज 5 रामसर साइट्स वेर एडेड, तो 5 भी बहुत बड़ा नंबर होता है। सो दे माइट आस्क ए क्वेश्चन रिगार्डिंग विद द रामसर कन्वेंशन एज सच, है ना। तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे दे तो रामसर कन्वेंशन के बारे में, बट यू हैव टू रीड मोर एंड मोर पॉइंट्स रिगार्डिंग विद इट। आपका जो एनवायरमेंट की बुक है PMFIS और शंकर IAS में और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलने का चांसेस है, या एज यू नो डिजिटल इंडिया के हिसाब से इंटरनेट आगे है तो यू कैन जस्ट गूगल इट एंड चेक इट आउट। सो रामसर कन्वेंशन अगर देखें इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 2 February 1971। दैट्स द रीजन व्हाई एवरी 2 February एवरी ईयर इट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड्स वेटलैंड डे। एंड अगर आप देखेंगे इट इज बीन अडॉप्टेड इन द सिटी ऑफ रामसर इन द ईरान on the shore of Caspian Sea. तो ये Ramsar is very much attached with this particular Caspian Sea as such. So this particular India, if you see, it came into force in India 1 February 1982. So 10-11 साल के बाद इंडिया ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। तो हर साल जब 2 February आएगा वर्ल्ड वेटलैंड डे के हिसाब से हम सेलिब्रेट करेंगे इसको। इस साल का जो 2024 का थीम था, एवरी टाइम एवरी ईयर वी वुड बी हैविंग a theme attached with this particular wetlands day. So इस साल का जो wetland day है, इस साल का theme है wetlands and human well-being. तो हो सकता है ये भी point हो, they might ask you as a factual based information as a question. तो wetlands and human well-being is the most important aspect, focus on it. तो ये wetland conserve करने से हो सकता है रामसर साइट से ऐड हो, भले रामसर कन्वेंशन के बारे में ना पूछे, there are some other initiatives, है ना, वेयर दे माइट आस्क यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग विद इट। ऑलरेडी मैंने बोला था वर्ल्ड वेटलैंड्स के बारे में। देयर इज वन मोर एस्पेक्ट वेयर दीज पर्टिकुलर वेटलैंड्स व्हिच हैव इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आर केप्ट इन वन पर्टिकुलर रिकॉर्ड कॉल्ड एज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो ये भी एक बार देख लो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है। एंड इंडिया में वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 आया था, ये मेंस आंसर रेटिंग में आपको हेल्प करेगा। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम NPCA है नेशनल लेवल पे। अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, दिस इज ऑल्सो वन इनिशिएटिव। नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम NWCP। तो ये 4 हो गया नेशनल लेवल पे एंड ये 2 हो गया वर्ल्ड लेवल पे। सो विच आर ऑल्सो सर्टेन इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट दिस पर्टिकुलर वेटलैंड्स। सो प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन इट, चांसेस आर वेरी ग्रेट दैट दिस ईयर रामसर कन्वेंशन पे अगर क्वेश्चन नहीं आए इसके ऊपर या इसके ऊपर या इसके ऊपर, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम या वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स या मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इस तीनों के ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस है। पहला फोकस ऑन रामसर साइट्स एंड देयर फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस। 80 बोल के मत छोड़ो, मैक्सिमम जितना हो सके उतना याद रख लो, ठीक है। सो होप द इंफॉर्मेशन हैज हेल्प्ड यू in this particular regard. We would be coming up with more and more precise articles from Down to Earth Yojana, Kurukshetra and rest of the important magazines. Appreciate तो करे ना करे, but we will be doing it for you. But आपका जो likes and share है वो हमें थोड़ा boost up दे देंगे, है ना। Thank you for watching this. Have an awesome day. जय हिंद।